Okay, let them join later on. We'll start our today's session. In last lecture, what we have seen, just we will discuss once again, and remaining part of this chapter we'll see, and we'll finish today our unit number third. Unit number fourth. It is the fundamentals of artificial intelligence. Okay, in next lecture, we are planning to take one quiz on this our unit number fourth, and after that we are going to start our next unit. Okay, applications of artificial intelligence. Okay, in that again we will discuss. Okay, there are different methods are there. Okay, how we can use that methods we'll discuss on that unit. Okay, first of all, we'll finish today this whole part, and we will move towards the our quiz of this unit. Okay. Now, in last lecture, we have started the depth first technique. Okay. In that depth first technique, we have discussed related. Okay, the solution is find out with the this diagram. You can understood. Suppose this one is the age problem, and this problem having the number of solutions. Okay, suppose A, B, C, D. And again, this B having two more solutions, C having solution, D having solution. And if I want optimum solution or the with minimum cost that solution, then we have to use this depth first technique. Okay, in that only we are considering one branch and we are finding the solution of each and every node. Okay, if I will get the optimum solution, then we'll left from that. Otherwise, we'll go to the previous node and we will check the another branches. Okay, in depth first technique we have seen that one. Again, this will follow. Okay, first in last out. Okay, means जो पहिला येईल तो शेवटी जाईल किंवा लास्ट इन फर्स्ट आउट. That pattern it will follow. Next one is the this is we have seen advantages disadvantages of depth first search. Okay, पाठीमागच्या वर्षी बघितलेलं आहे. Okay, advantages of depth first search. Okay, this one is the algorithm. We can go through it, that one part. Next, birth first technique. Also this technique we have discussed in the previous lectures. In birth first technique, in this technique we are finding the optimum solution by level. Okay, suppose this one is the 0 level, level 1, level 2, level 3, and level 4. Means first we are checking the first level, second level. Okay, suppose this one is a problem, then in first level we will find the solution, optimal solution whether we can get. Otherwise we will move to the next level, and each and every node it is executed in this birth first search technique. Okay, next one is the we have seen again advantages and disadvantages of our birth first search technique. Okay, next one we have discussed about the difference between DFS stands for depth first search and BSF stands for birth first search. Okay, we have discussed related to that two techniques. In depth first search, we can get the good solution, but in birth first search we can get optimal solution. Okay, डेप्थ फर्स्ट सर्च मध्ये काय मिळणार आहे तर त्या ठिकाणी आपल्याला गुड सोल्युशन मिळेल जे चान्सेस आहेत, परंतु बर्थ फर्स्ट सर्च मध्ये आपल्याला काय ऑप्टिमल सोल्युशन या ठिकाणी भेटणार आहेत. Okay, next one is the we have started the heuristic. Okay, what is mean by heuristic? We have discussed related to that heuristic search techniques and other things. Okay, we have started this
again we have seen last yesterday this traveling salesman problem. Okay, heuristic, first we have understood what is meant by heuristic technique. Okay, heuristic technique, it is a technique we can find the shortest or the quick solution of any problem. Okay, this technique is used for finding quickly solution. We require this heuristic search techniques. There are different techniques are available. In that we have yesterday we have started one technique. We have seen one technique, hill climbing technique. Okay, again we have discussed related. It will provide the good solution again similar to the similar to our DFS. It will provide the good solution, but we cannot say that it will provide the optimal solution. Okay, again we have started this hill climbing problem. Okay, hill climbing चा प्रॉब्लेम आपण बघितले, सॉरी एक मेथड बघितलेली आहे. With the help of this hill climbing algorithm we can find the shortest path. Okay, how we can find out? Okay, we have discussed in the last lecture, as well as we have seen the, okay, there are some problems with hill climbing. Okay, which are the problems related to the that hill climbing. Hill climbing चे जे काही प्रॉब्लेम आहेत ते आपण त्या ठिकाणी पाठीमागे बघितले. Okay, these are the three problems may occur while, okay, designing the algorithm. Means suppose we are moving to one hill in upward direction. At a certain level we can say that I have achieved the, okay, maximum level, but that maximum level, that level it is known as local maximum. And global maximum means, how can define global maximum? Which is highest peak or the highest possible solution. If I get, then we can say that it is global maximum. Next one is the flat maximum. At certain times, okay, one problem having number of solution, but cost of that solutions are same. म्हणजे एखादं ए नावाचं सोल्युशन असेल तर त्या ठिकाणी ए टू बी अँड 3 पॉसिबल सोल्युशन्स बी सी अँड डी, देन वी कॅन से दॅट, ओके, आय विल ड्रॉ हियर. Okay, suppose one solution, this problem of the start goal, I will write start, having the 3 solutions. I will write here A, this one is the B, and this one is the C. Okay, and each solution having cost of, we'll write here 5, and this having also 5. Okay, means there is one condition, means there is one problem having same solution, then, okay, there is one problem, we cannot further go with further this problem, or we cannot solve this kinds of the प्रॉब्लेम. म्हणजे तुम्ही जर भेटला तर एखाद्या प्रॉब्लेमला 3 सोल्युशन आहेत, परंतु त्याची कॉस्ट काय आहे, तर प्रत्येक सोल्युशनची कॉस्ट काय आहे, तर 5. म्हणजे त्या ठिकाणी इट इज नॉट पॉसिबल टू गो टू एव्हरी सोल्युशन. वी कॅन कन्सिडर, or it is not possible to solve these kinds of problem. And in reach you can say that, suppose this one is the 3-dimensional diagram. I will draw here. Okay, this, suppose in the reach we are moving to upward side up to this A point, and when we reach to the A point we know that the other side, B side, is the maximum optimal solution. Means we can move only in only one direction, it cannot be change the other direction. Okay, ती काय करणार नाही तर दुसरी डायरेक्शन चेंज करणार. ओके, एक तर डायरेक्शन पकडली तर along x only it will travel, it cannot move along y direction. Okay, might be understood this part. This part we have
Okay, last time we have discussed related local maximum, a flat maximum, and reach. Okay, this we have discussed. Now, again, there are two more methods. Okay, in heuristic search only. Heuristic search technique informed of the known information search technique. Okay, heuristic search means to find the solution with informed search. म्हणजे एखादं सोल्युशन माहित आहे तर त्याची इन्फॉर्मेशन माहित आहे तर त्याचं जे काही आपण सोल्युशन फाइंड आउट करणार आहे तर ते कसं असणार आहे तर क्विकली असणार आहे आणि त्याच सोल्युशनला आपण काय म्हणतोय तर ह्युरिस्टिक सर्च टेक्निक असं म्हणतोय. ओके, नाउ फर्स्ट we have seen the technique is hill climb, and second now we will discuss branch and bound search technique. In branch and bound search technique, this algorithm technique which find the optimal solution by keeping the best solution found so far. If partial solution can't improve on the best, it abandoned. By this method, the number of nodes which are explored can also be reduced. Means we can say that, suppose let's consider this is a root problem or the one problem having the three solutions. Okay, suppose solution number 1, solution number 2, and solution number 3. Each solution having certain cost. Okay, प्रत्येक solution ला काहीतरी cost असणार आहे. Okay, this solution having cost of 18, this solution cost having 12, and this solution having cost of 16. Can you tell me which one is the optimum solution? कुठलं optimum solution असणार आहे? Whether this one, okay, left side, right side, or middle one. जर तुम्ही कन्सिडर केलं तर कमीत कमी डिस्टन्स आपल्याला कुठून ट्रॅव्हल करायला लागेल, कुठे डिस्टन्स दिसते आपल्याला? 18 एकदम लहान आहे का 12 का 16? तर ऑब्वियसली वी कॅन से दॅट दिस 12 इज द ऑप्टिमल सोल्युशन. देन वी कॅन अगेन फाइंड द अनदर ब्रांचेस. ओके, आता ह्या ठिकाणी अजून एक ब्रांचेस ड्रॉ करेन. ओके, in that each branch having, I will write the cost. Okay, which one is the cost lesser one? Now if I draw the two beams, then the cost of this one is the 12 and 17. Which one is less? I will select this 12. Again I will prepare next branch, and those are remaining. आता इथं 12 जर मी ब्रांचिंग करत गेलो पण तर राहिलेली जी काही कॉस्टिंग आहे तर डायरेक्टली काय करणार आहे तर वी आर bounded that branch. Bound means stop किंवा आपण काय म्हणतोय तर delete that branch. ओके, जर ऑप्टिमल सोल्युशन नसेल तर ती डायरेक्टली मी काय करणार, ब्रांच म्हणजे काय करणार आहे तर ऑप्टिमल सोल्युशनला आय विल ड्रॉ द ब्रांचेस अँड अदर सोल्युशन इन बाउंड टेक्निक, अदर सोल्युशन आय विल डिलीट दॅट सोल्युशन्स. ओके, जर रूट बघितलं तर ऑप्टिमल सोल्युशन काय होतं सुरुवातीला 12, त्यानंतर दिस वन इज द 12, अगेन दिस वन इज द 12. आणि ह्याच्या ठिकाणी जर बघितलं तर 18 आणि 16 these two, okay, solution cost is 18. For that reason I have deleted. Okay, for that I have written no. Okay, I will not further move these branches, or these branches are bounded or stopped. बाउंडेड लाच काय म्हणतात तुम्ही स्टॉप करणे. ओके, आणि जी आपल्याला ऑप्टिमल सोल्युशन देईल त्यालाच मी काय करणार आहे तर ब्रँचिंग करत जाणार. ओके, दिस टेक्निक इज नोन ॲज ब्रँच अँड बाउंड सोल्युशन. ह्यालाच काय म्हणायचं तर ब्रँच अँड बाउंड. सगळ्या लक्षात येते का? एक प्रॉब्लेम आहे त्याला 3 सोल्युशन आहे. जे ऑप्टिमल सोल्युशन आहे तर त्याचे ब्रँचेस काढत जाणार आहे आणि जे लार्जर कॉस्ट असेल तर ते मी डायरेक्ट बाउंड करणार आहे किंवा त्याला स्टॉप करणार आहे. Okay, here you can understand. This is nothing but our branch and bound. That only I have written in first sentence. It's look for the best solution for given problem in entire space of the solution. Means it will provide the best solution to the our problem, but we cannot say it will provide the optimal solution. The bond in the function to optimize are merged with the value of the latest best solution. Next, it allows the algorithm to find parts of the solution space completely. Means each and that optimal cost or the
optimal branches are continuously checked throughout the to get the good solution. It also deal with the optimization problem over a search that can be presented as the level of the search tree. The purpose of branch and bound search is to maintain the lowest cost path to a target. Once a solution is found, it can keep moving the solution. Okay. एखादं सोल्युशन मिळालं लो कॉस्टनी मी मूव्ह करत जाईल आणि ज्या ठिकाणी मला बेस्ट सोल्युशन मिळेल त्या ठिकाणी मी त्या ठिकाणी मूव्ह करणार. Now just I will play one video. In that also you will understood how actually carried out. Just watch clearly. Thinking of cracking a data scientist role at a top. एल्गोरिथम आता है ए स्टार हिल क्लाइंबिंग के लिए. हिल क्लाइंबिंग हमें एक प्रॉब्लम देगी गई थी बड़ी, लोकल मैक्सिमा. उसको हमने दूर किया था स्टिमुलेटेड एलिवेंसी. ठीक है, वो टॉपिक जरूर कर लीजिएगा. सिलेबस के बाद हिल क्लाइंबिंग, सिलेबस में हिल क्लाइंबिंग के बाद हमारे पास एल्गोरिथम आता है ए स्टार एल्गोरिथम. ठीक है, तो ए स्टार एल्गोरिथम बेसिकली दो कांसेप्ट यूज करता है. वो करता है सबसे पहले एक ब्रांच एंड बाउंड का, और दूसरा कंसेप्ट वो यूज करता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल का. ठीक है, तो जब तक इनका आइडिया ना हो इस टॉपिक पे जंप करना सही नहीं है. तो पहले मैं आपको करवाऊंगा ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम, देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, देन देखेंगे कि इन दोनों को ज्वाइन करके वो कैसे ए स्टार एल्गोरिथम में क्या चीज दे रहा था. ठीक है, तो टॉपिक ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं कहूंगा बहुत इजी टॉपिक है, बस ध्यान से समझिएगा. ठीक है, ब्रांच एंड बाउंड दो शब्द है मेरे पास. ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या करें उसको देखो. ब्रांच का मतलब होता है यहाँ पे हमारे लिए रिफाइन एंड एक्सटेंड. ठीक है जी, और बाउंड का मतलब होता है यहाँ पे एक्सक्लूड और स्टोर. काफी जनरल मीनिंग है, इसको समझो पहले. रिफाइन एंड एक्सटेंड का मीनिंग क्या हुआ ब्रांच का मतलब? जिसे वो कहता है कि हमने पिछले कंसेप्ट देखे थे बेस्ट फर्स्ट सर्च या हिल एल्गोरिथम को क्या कहते थे कि स्टार्ट नोड से शुरू करते थे. ठीक है, आगे सपोज करो हमें मिली कोई वैल्यू, इसकी 7 मिली, इसकी मिली 8. हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर घुसते थे. ठीक है जी, फिर हमको मिली मान लो वैल्यू 6 और इसकी मिली 5. हम कहाँ जाते थे, इसके अंदर. और फिर यहाँ पे मिली 3, सपोज करो यहाँ मिली 2, तो हम कहाँ जाते थे, 3 के बाद यहाँ पे 2. ठीक है, ये कंसेप्ट ऐसे चलता था. बेसिकली हम क्या कर रहे थे, सॉरी 3 के बाद अगर यहाँ पे मुझे 1 मिलेगी तो मैं यहाँ जाऊंगा, गलत बता दें यहाँ जाऊंगा. ठीक है, हम बेसिकली कर क्या रहे थे, ब्रांच बना रहे थे और उन्हें एक्सटेंड कर रहे थे. ठीक है, एक्सटेंड कर रहे थे, रिफाइन कर रहे थे. रिफाइन मतलब अंदर जा रहे हैं और एक्सटेंड करते जा रहे हैं, इसका मतलब है ब्रांच का. बाउंड का मतलब क्या होगा कि भाई जब मुझे दिखा कि मुझे इससे नहीं लेना तो मैंने इसे क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, बाउंड कर दिया, एक बाउंड्री बना दी कि भाई अब तक को मैं आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता. तो यही कंसेप्ट यूज करता है ब्रांच एंड बाउंड. बट किस वे में, चलो उसे देखेंगे. ठीक है, ये मैंने ग्राफ लिया है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे ट्री के अंदर और देखेंगे कि कैसे ये हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा ब्रांच और बाउंड से. ठीक है, अब स्टार्ट, ये मेरी स्टार्ट नोड है, सबकी मैंने वैल्यूज दे रखी है कि इस नोड से इस नोड पे जाने की मेरी कॉस्ट क्या है. तो एक्सटेंड करना शुरू करते हैं. स्टार्टिंग नोड लेंगे S. ठीक है, अब बढ़ते आगे. S से मेरे पास दो चीजें निकली, ब्रांच एंड बाउंड के थ्रू जा रहा हूं. कैसे होगा देखो,
ब्रांच एंड बाउंड कहता है कि स्टार्ट नोड से स्टार्ट करो और क्या करना है हमें, बेसिकली हम देखेंगे इसके अंदर की दो जगह निकला है। देखो इसने दी वैल्यू बी को 5, ठीक है, ये मेरी नोड आ गई ए जिसकी वैल्यू है 4, ठीक है। एस से ए या ए से एस का पोस्ट क्या है 4, बी से एस या एस से बी की पोस्ट क्या है 5, ठीक है जी। अब वो क्या कहता है इसके अंदर कि हम पार्शियल पार्ट्स, कंसेप्ट आता है इसके अंदर पार्शियल पार्ट्स का, मतलब जो अभी पूरे एक्सप्लोर नहीं हुए, अभी बताता हूँ आपको कैसे। अब मुझे एक्सप्लोर करना है, इसको बी को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। बी को मैं आगे बढ़ाऊंगा पहले, यहाँ पे सॉरी बी को नहीं ए को बढ़ाऊंगा पहले, ए को, क्योंकि उसकी कोस्ट क्या है कम है, ठीक है। इस लिंक पे ए को बढ़ाने पे मुझे 3 रास्ते मिलते हैं, बी डी और ई, ठीक है। ये है मेरा ए का रास्ता, ठीक है, ये है मेरा डी का रास्ता और ये है मेरा बी का रास्ता, ठीक है। डिस्टेंस डालते हैं इसके अंदर, देखो ए से ई का डिस्टेंस है 15, ठीक है जी। अब एस ए और ई, ए से ई 15, मतलब ये कितना हो जाएगा 19, इसको रिमूव कर दिया मैंने। टोटल पाथ एस ए ई का पाथ कितना हो गया 19, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ए से डी का रास्ता कितना है 8, पहले कितना 4 और अब 8 12, ठीक है जी। आगे चलो, अब ए से बी का रास्ता है 3 काउंट पे, मतलब 4 + 3 कितने हो गए 7, ठीक है जी। अब ब्रांच एंड बाउंड का मेन कंसेप्ट चालू होगा। देखो ये आ गई लीफ नोड, ठीक है। लीफ नोड में क्या हुआ, आपस में कंपेयरिंग हुई, जिसका पाथ छोटा होगा हम पहले उसको पकड़ेंगे, ठीक है जी। पकड़ा जी, बी को पकड़ेंगे। अब यहाँ पे बी क्या कहता है कि ये 5 है, तो बी से आगे रास्ते कौन से निकल रहे हैं, एक निकल रहा है ए को, ठीक है। इसका डिस्टेंस बी से कितना है 3, मतलब 5 और 3 8। आगे चले, बी से एक रास्ता निकलता है सी को, सी का डिस्टेंस कितना है 4, और ये 5 और ये 4 कितने हो गए 9, ठीक है। आगे चलो, बी से डी का डिस्टेंस निकलता है, एक नोड आई डी, डी कितने डिस्टेंस में मेरे पास 6, मतलब 5 और 6 11, ठीक है जी। अब देखो लीफ नोड कौन कौन सी हुई, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी नोड कौन सी है मेरे पास, सबसे छोटी नोड है ये 7 की, बी की। इसको एक्सटेंड करूंगा मैं, ठीक है। अब मैंने बी को फिर एक्सटेंड किया, मुझे डुप्लीकेट पाथ्स नहीं लेने, जैसे कि मैं ए से बी तो आया हूँ, अब बी से आप लोग ए पे भी जाओ तो वो नहीं जाना, ठीक है ना। ऐसे डुप्लीकेट पाथ नहीं लेने, मुझे फॉरवर्ड पाथ लेना। बी से आगे मुझे कहाँ जा सकता हूँ मैं, सी पे, ठीक है कि सी का डिस्टेंस क्या है, बी से 4, मतलब 7 और 4 कितने हो गए मेरे पास 11, ठीक है जी। आगे बढ़ा, बी से मैं कहाँ जा सकता हूँ डी पे, ठीक है, बी से जाऊंगा डी पे। देखो डी मुझे दे रहा है 6, यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, ये 7 थी, यहाँ पे 7 और 4, ये मुझे देगा 7 और 6 13, ठीक है। बी से और क्या निकला, एक निकला ए, वो मुझे कंसीडर यहाँ पे करना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो कंसेप्ट कैसे चलेगा। मुझे फिर से कंपेयर करने हैं क्या, इन वैल्यूज को छोटा कौन सा है, ये 8, ये 9, ये 11, ये 11, ये 13, ये 12, ये 19, ठीक है। सबसे छोटा कौन है यहाँ पे 8, ठीक है। इसको पकड़ूंगा मैं। इसको पकड़ने के बाद देखो ए से मुझे कहाँ जाना है बी, बी ऑलरेडी आ चुका हूं मैं। ए से कहाँ जाना है ई, ठीक है। ई का डिस्टेंस कितना है मेरे पास 15 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं देखूंगा ई का डिस्टेंस, अगर मैंने यहाँ से देखा ए से ई का डिस्टेंस कितना है मेरे पास 15, मतलब 8 और 15 कितने हो गए 23, ठीक है। ए से और कौन सी नोड निकली थी डी, डी निकालेंगे। देखो डी कितनी दे रही है हमें यहाँ पे, ए से डी 8, मतलब 8 और 8 16, ठीक है। और ए से और क्या निकला मेरे पास बी, बी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। एस हम लेंगे नहीं, ठीक है, ऊपर आ चुका है।
तो ये दो डिस्टेंस निकले। अब आगे देखेंगे कि हमें एक्सप्लोर किसको करना है। मेरे पास बची सबसे छोटी नोड सी की, सी को एक्सप्लोर करेंगे। सी पे चलते हैं, ये रहा सी। सी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, बी से सी आया हूँ तो आगे मैं डी जा सकता हूँ। डी कितना मेरे पास 4, अगर मैं डी लूंगा तो 9 4 13, ठीक है। सी से आगे कहा जा रहा हूँ मैं, जी पे, गोल पे। गोल ने मुझे डिस्टेंस कितना दिया यहाँ से, 9 और 7, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं आगे जाऊंगा, सी से मैं गया जी पे 16, ठीक है। अब सी से और कहाँ जा सकता हूँ मैं, डी पे, ठीक है। डी पे गया मैं, यहाँ से डी पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, सॉरी मेरे हो चुके हैं। अब मुझे क्या मिला, जी मिल चुका है, एक गोल नोड मिल चुकी है, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 16 है। अब मैं ये देखूंगा कि वो पाथ जो 16 से ज्यादा है मुझे उनको रोक देना है, क्योंकि भाई मुझे पता है कि एक पाथ मुझे मिल चुका है, कौन सा, ये वाला। ये पाथ मुझे एक मिल चुका है कि अगर मैं एस से बी, बी से सी और सी से अपार्टमेंटला जोर आहे, मतलब एस से बी, बी से सी और सी से, ये पाथ एस से बी, बी से सी, सी से जी, मुझे क्या दे रहा है 16 वैल्यू दे रहा है। मुझे अगर इससे कम मिलेगी तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मेरे को बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो अब कंसेप्ट आता है यहाँ पे बाउंड करने का। बाउंड कैसे करेंगे भाई, जितने भी 16 से ऊपर वाले को बाउंड कर दो। कैसे, ये 19 है, इस रास्ते को काट दो, इसको भाई अब मैं आगे एक्सप्लोर नहीं करूंगा, ठीक है। उसके अलावा देखो और कौन सा मेरे पास बाउंड करने वाला, एक ये है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है इसके आगे की नोड जो है कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेके आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा पाथ बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा G16 से ऊपर। मैं एक इस पाथ को नहीं लूंगा, एक मैं इस पाथ को नहीं लूंगा, ऑलरेडी जब मैं E कैंसिल करेगा, जिस पाथ में भी E आ रहा है उसको ऑलरेडी कैंसिल कर दूं, ठीक है। अब आती है बारी, कौन से बचे मेरे पास, ये D, ये 11, ये 12, ये 11, ये सारे। अब मैं एक्सप्लोर करूंगा किसको, सी को। देखो यहाँ से सी चला था, यहाँ पे 9 है, ठीक है, और यहाँ पे है 11। बात को समझना, क्या मैं सी के रास्ते डी और जी तो निकलेंगे, ठीक है जी। अगर पहली चीज मुझे पहले से छोटी दे दी, उसको एक्सप्लोर करने का फायदा है। अगर मैं एक्सप्लोर भी करूंगा 11 के बाद में अगर 7 जोड़ूंगा तो क्या देगा मुझे, डी, यहाँ पे 18, ठीक है। और दूसरा इसका कौन सा, सी से मैं कहा जाऊंगा, सॉरी सी से 4 डी लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 11 4 15, ठीक है। और बात अगर जी की आए तो मुझे क्या मिलेगा 18, जिसको एक्सप्लोर करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं इस नोड को भी क्या करूंगा, बाउंड कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ो, उसके बाद बचा ये डी। इस डी से मैं अगर आगे जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो पहले मेरे को डी एक्सप्लोर करना तो पहले मैं ये वाला करूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं करूंगा, क्यों, छोटा ये है, 11 में 2 ऐड करूंगा, सीधा मिलेगा मुझे क्या, जी 13। देखो 13 की वैल्यू, अब मेरे पास क्या आ गई, छोटी वैल्यू आ गई, ठीक है जी। ये वैल्यू छोटी आ गई तो मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ के चलूंगा। अब मैंने क्या कैंसिल कर दिया, सारे के सारे वो पाथ कैंसिल कर देने जो मुझे 13 से ज्यादा दे रहे, तो मेरे लिए ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, ये कैंसिल हो चुके हैं। 12 के बाद डी से जाऊंगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास एक ऑप्टिमल पाथ आया जी, जिसकी वैल्यू 13। ये है ब्रांच एंड बाउंड का कंसेप्ट, जो क्या कहता है, रिफाइन एंड एक्सटेंड करो, रिफाइन करते जाओ, घुसते जाओ, ठीक है। और एक्सक्लूड करना कि जो वैल्यू आपको लगे बाद में कि गोल पे पहुंचने के बाद हमारे पास, देखो गोल पे जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरे पास ये, मैं यहाँ पे खड़ा था, एक पॉइंट यहाँ पे खड़ा था, ये पॉइंट पे खड़ा था, कुछ इस पॉइंट पे खड़ा था। उससे क्या हुआ, वो बेसिकली क्या थे, मेरे पार्शियल पाथ थे, जिनको भी मैंने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था, ठीक है। अब उन पार्शियल पाथ को पूरा एक्सप्लोर करने की जरूरत है या नहीं, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, गोल की वैल्यू पे। वो वैल्यू अगर मेरी पार्शियल पाथ की वैल्यू ज्यादा है और गोल की वैल्यू कम है तो मैं क्यों एक्सप्लोर करूं, वही कंसेप्ट कहते हैं कि तू बाउंड कर। इस तरीके से हम चले और हमने अपना ब्रांच एंड बाउंड का कंसेप्ट जो था वो इस तरीके चलता है। बेसिकली ये क्या करता है, क्यू के अंदर एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर लेता है, उसके अंदर क्या करेगा, जितने भी नोड के पाथ आते जाएंगे उनको डालता जाएगा, ठीक है। जो भी पार्शियल पाथ है,
चाहे हमारे पास गोल का पाथ है, सबको डालता जाएगा, सबको शॉर्ट करता जाएगा, ठीक है। जो छोटा मिलेगा फिर उसको एक्सटेंड करेगा, ठीक है। और जहां उसको लगा कि शॉर्ट से ज्यादा कोई बड़ा पाथ आ रहा है, उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। ये कंसेप्ट चलता है हमारा ब्रांच एंड बाउंड के अंदर, ठीक है। ये कंसेप्ट था हमारा ब्रांच एंड बाउंड का, कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, हमने जो बताया था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल का। Okay, I hope you understood this part, your branch and bound. कशा पद्धतीनं एखादा प्रॉब्लेम असेल तर तो सॉल्व केला जातो, हे एक प्रॉब्लेमचं मी त्या ठिकाणी व्हिडिओ मध्ये सांगितलेलं होतं बेस्ट मॅनर. मीन्स यू शुड रिमेंबर दॅट. ओके, एक सिंपल गोष्ट लक्षात ठेवा की सपोज वन प्रॉब्लेम हॅव्हिंग देयर पॉसिबल सोल्युशन्स 1 2 3, then we have to check the minimum cost of each solution. Suppose this cost is 12 18 16, then we have to go for the minimum solution, and the other two we have to bound that solutions, म्हणजे त्या ठिकाणी बाउंड किंवा स्टॉप करायचे. and after that minimum solution we have to explore how the that in that video said that we have to partialize that solution and we have to find the optimal solution. त्यानंतर आपल्याला optimum solution find out or the good solution we have to find out. Okay, we cannot find the optimal solution in this branch and bound search technique. Okay, next one is the second technique of our heuristic search technique, and last one is our third technique based first search technique. With the help of this technique we can find the again best solution. Okay, how we can find the best solution? With the help of one example we will understood. And okay, suppose let's consider, I will open this diagram. Okay, here suppose S is the our problem and the K is the we'll consider I is the goal. Okay, where is the I is the our goal. S is the source, I is the goal. Then we have to find the best or the good solution for this I. Then in that case, okay, you should remember that in previous case, okay, in previous case means which one? In a branch and bound search technique we are finding the cost of each branch. Okay, here we are finding the cost of each branch. कशामध्ये फाइंड आउट करतोय? ब्रांच आणि बाउंड मध्ये काय करतोय तर we are finding the cost of each branch, and in best first search technique we are finding the heuristic value of each node. Okay, we are finding the heuristic value of each node. Okay, how to find heuristic value we have seen at the time of, okay, heuristic. We are studying in that time of heuristic च्या वेळेस आपण बघितलेले. तर एखाद्या प्रॉब्लेमची जर heuristic व्हॅल्यू कशा पद्धतीने फाइंड करायचं हे आपण त्या ठिकाणी बघितलेले. ओके, नाउ यू शुड रिमेंबर दॅट. एक गोष्ट लक्षात ठेवा सगळ्यांनी, ब्रांच अँड बाउंड मध्ये वेर यू फोकसिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ ईच सोल्युशन, अँड हियर वी आर फाइंडिंग द, okay, we are finding the heuristic value. Now you can see here yes to C, this 5 indicate the cost of that, cost to reach to the C. Okay, म्हणजे yes हे 5 जे लिहिलेले आहे C पर्यंत जाण्याची कॉस्ट आहे. हे B आणि S च्या मध्ये जे काही 6 लिहिलेले आहे इट विल रिप्रेझेंट द कॉस्ट ऑफ B, आणि A वरती जे काही मेन्शन केलेलं आहे S to A ट्रान्सफर होण्यासाठी जे काही कॉस्ट लागणार आहे ती कॉस्ट व्हॅल्यू त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केली. ओके, बट वी आर नॉट कन्सिडरिंग कॉस्ट. ओके, वी आर कन्सिडरिंग द व्हॅल्यू ऑफ ईच अँड एव्हरी एलिमेंट. ओके, प्रत्येक एलिमेंटची ह्युरिस्टिक व्हॅल्यू किती आहे हे आपण त्या ठिकाणी फाइंड आउट करतो. हाऊ वी कॅन फाइंड आउट दॅट ह्युरिस्टिक व्हॅल्यू? ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस इन दॅट.
Okay, with one example, we will see one video. In that, with one example, he has explained very good manner. Okay, it is difficult to draw that with the help of this pen and paper. Okay, in the okay, we will understood with the help of that video only. Okay, very good video they have done. Okay, just we will first go through that theory part. Best first search is based on expanding the best partial path. Okay, similar to this one. Okay, we are finding the best partial path, but here we are considering the cost. Rather than considering cost in the best first search, we are considering the heuristic value. That you can consider the heuristic value. Partial path, current node to goal node. Here motion is the form best open node so far in the partial developed tree. If the state has been generated earlier, new path is better than previous one. Okay, then change the parent and update the cost. Okay, next one is the best first search is an instance of graph search algorithm in which a node is selected for expansion based on evaluation function known as heuristic function. Traditionally, the node which is the lowest evaluation is selected for the expansion because the evaluation measure the distance to the goal. Okay, means we have to find the minimum cost or minimum heuristic value and we have to expand that node to further. म्हणजे एखाद्या नोडचं सपोज हे जे ह्युरिस्टिक व्हॅल्यू कमी आली तर आपल्याला तो नोड आपल्याला काय करायला लागणार तर एक्सपांड करायचं. सिमिलर दिस वन, सपोज बी हॅव्हिंग द मिनिमम ह्युरिस्टिक व्हॅल्यू, देन वी हॅव टू एक्सपांड दिस बी ओनली. Okay, now out of this, if these are the heuristic value, then can you tell me which one having the minimum heuristic value? कोणाचं मिनिमम आहे सांगा. तर ज्याची व्हॅल्यू लहान असेल तर तेवढा आपण लवकर पोहोचू त्या पॉइंटला, जे जास्त ते जास्त वेळ लागेल त्या पॉइंटला पोहोचायला. म्हणजे सपोज ए हॅव्हिंग द मिनिमम heuristic value, then we are expanding that A only rather than expanding B and C. Okay, but here the cost we are considering in branch and bound technique. Okay, branch and bound मध्ये cost आपण consider करू. Traditionally, node which is the lowest evaluation is selected for the expansion because evaluation measure the distance to the goal. Okay, now only we have discussed. Okay, the lesser the distance we are expanding, or the lesser the node distance we are expanding that only further. Best first search can be implemented within general search framework via priority queue, a data structure that will maintain the fringe in ascending order of EF value. This search algorithm serve as a combination of depth first and breadth first algorithm. Means it is in best first search, it will use these two techniques. Uninformed search technique, which are those, or the non-heuristic techniques, which are those depth first and breadth first search algorithms they are using. In best first search algorithm is often referred greedy algorithm. With this is because the quickly attack the most desirable path as soon as its heuristic weight become the most desirable. Okay, means in the depth first and breadth first, we are considering the heuristic value, and by combining these two, we can use this best first search technique. Or it is also referred as greedy algorithm. Okay, ह्यालाच आपण काय म्हणतोय the greedy or the unheuristic, ह्यालाच आपण काय म्हणतोय the greedy algorithm. We can say that. Okay, just we will see that how we can find out that best with the help of best search method. Okay, actually I have typed here link, but I okay. वो डिपेंड करता है किसके ऊपर. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम के लिए भी
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको साथ फॉर्म में आता है। तो बेस्ट सर्च एल्गोरिदम सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कम्स अंडर द इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक। एंड जैसा कि इन्फॉर्म्ड में आता है तो इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड हम यूज करते हैं। हाउ टू फाइंड द ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक इवन होता क्या है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। इवन अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म सर्च टेक्निक के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो है, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उन वीडियो से ये कि आपका एक बेस बन जाएगा, क्योंकि ये सारी वीडियोस ना लिंक्ड है। इवन मैंने 8 पजल प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया विदाउट ह्यूरिस्टिक एंड विद ह्यूरिस्टिक। तो जब हम विद ह्यूरिस्टिक सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी बीएफएस को यूज कर चुके हैं। लेकिन बीएफएस का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, एल्गोरिदम होता कौन सा है, तो वो आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कट पता लगेगा। और बीएफएस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोज एंड कॉन्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम से। लेट ओपन बी अ प्रायोरिटी क्यू कंटेनिंग द इनिशियल स्टेट। यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करना है क्या, ओपन, ओपन एंड क्लोज्ड। यहाँ पे हम दो टाइप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रायोरिटी क्यू। ओपन जो है वो मेरी क्या है, प्रायोरिटी क्यू है, जिसमें हमने करना क्या, नॉर्मल क्यू की तरह, लेकिन हम इसमें प्रायोरिटी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेस्ड ऑन देयर ह्यूरिस्टिक वैल्यू, नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू के हिसाब से हम उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं, और उसी हिसाब से हम उनको क्यू से निकालेंगे और उसी हिसाब से हम उनको क्या करेंगे, फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे लूप, इफ ओपन इज एम्प्टी रिटर्न द फेलियर, otherwise remove the first node from the open, that is called a node. If the node state is a goal, then return the path from initial to node, else generate all the successes of the node. देखने में तो ये क्या है, थ्योरेटिकल सा फंडा है, और इसको अगर हम एक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर कट पता लगेगा कि कैसे एक्चुअल में बीएफएस काम करता है। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, सिटी का मैप है। अब यहाँ पे मेरे को ए से जी तक पहुंचना है। ए मेरी स्टार्ट स्टेट है एंड जी गोल स्टेट है। ये मेरी क्या है, गोल स्टेट है। अब ए से जी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या यूज करता है, ह्यूरिस्टिक। अब यहाँ पे हम ह्यूरिस्टिक मेथड क्या लगा रहे हैं, ह्यूरिस्टिक कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, that is also called a Leucidian distance. Leucidian distance से हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब A से G का, D से G का, सारी नोड से G का क्या Leucidian डिस्टेंस है, क्या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, और वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको अगर इवन क्वेश्चन भी आता है ना, तो आपको ये ऑलरेडी दिया होगा, क्योंकि आप इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में कैसे फाइंड आउट करोगे। ऑल्दो ये मैथमेटिक्स का काम है, मैथमेटिक्स के अंदर आता है, लेकिन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला है उसका, x1 माइनस वाई, x1 माइनस एक्स नॉट प्लस वाई नॉट माइनस वाई नॉट का स्केयर और उसका होल स्केयर। जनरली हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। लेट्स से कि x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 कोऑर्डिनेट का होल स्केयर, और यहाँ पे हम उसका स्क्वायर रूट लेके चलते हैं। तो ये x और y इन दो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे a से g, b से g, c से g, d से g, इन सबका जो ल्यूकिडियन डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसको हमने कंसीडर करना है एज अ ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू को ही हम क्या ले रहे हैं, उसी के बेसिस पे ही हमने क्या चलाना है, बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम काम करना है। यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस दिख रहे हैं 7, 14, 25, ये ह्यूरिस्टिक नहीं है, ये है कॉस्ट। मतलब A से C जाने की कॉस्ट, B से E जाने की कॉस्ट, E से H जाने की कॉस्ट, ये एक्चुअल में कॉस्ट दी हुई है। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च टोटली किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू के ऊपर। ये पॉइंट आप याद रखना, बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम सिर्फ और सिर्फ किसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यू को ही हमने मेन फोकस रखना है। तो इन वैल्यूज के हिसाब से ही आपको इस एल्गोरिथम को चलाना है। तो देखो, सबसे पहले ओपन बी अ प्रायोरिटी क्यू कंटेनिंग द इनिशियल स्टेट। तो ओपन में मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया सबसे पहले। नेक्स्ट लूप, इफ ओपन इज एम्प्टी रिटर्न द फेलियर। नहीं, हमारे पास कहीं ना कहीं नोड्स है, तो ए सबसे पहले हमारे पास है ओपन में। सो रिमूव द फर्स्ट नोड, मतलब जो भी मेरे पास फर्स्ट नोड है, तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट
ए ही मेरी फर्स्ट है, तो उसको मैंने क्या दे दिया, नोड दे दिया, मतलब उसको एक नाम दे दिया नोड। इफ नोड इज अ गोल, ए मेरी गोल स्टेट है, नहीं गोल स्टेट है जी, तो मेरे को क्या करना है, एल्स पार्ट में आओ, सिंपल यहाँ पे जनरेट ऑल द सक्सेसर्स ऑफ द नोड एंड put the newly generated node into the open according to their f value. f value क्या है यहाँ पे, heuristic value। heuristic value के अकॉर्डिंग हमने उनको क्या करना है, क्यू में डालना है और बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी हमने उसको निकालना है। तो प्रायोरिटी का फंडा क्या है, जिसकी heuristic वैल्यू सबसे कम है वो सबसे बेस्ट है, सिंपल सा फंडा है। heuristic का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस लगा लो या कॉस्ट फाइंड आउट कर लो, तो जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा, वो मेरे लिए बेस्ट है। तो आ जाओ ए से स्टार्ट करते हैं। ए से देखो कौन कौन कनेक्टेड है, ए से बी कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है, डी कनेक्टेड है। आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहा है ए से बी सी डी कनेक्टेड है। अब सबसे पहले आप फाइंड आउट करो यहाँ पे इनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू, इसके ऊपर फोकस नहीं करना, आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यू के ऊपर फोकस करना है। तो देखो ए से आप बी पे जाते हो, बी आपको गोल स्टेट में लेके जाएगा, ये इसका मतलब क्या है कि आप ए से बी जाओ, बी आपको गोल स्टेट में लेके जाएगा, किस ह्यूरिस्टिक वैल्यू के साथ, मतलब कितनी कॉस्ट के साथ। देखो बी से जी आपको जाने की कॉस्ट कितनी है, 32, लिख लो। सी, ए से आप सी जाओ, सी आपको लेके जाएगा जी तक विद द कॉस्ट ऑफ 25। डी, डी आपको लेके जाएगा गोल स्टेट तक विद द कॉस्ट ऑफ 35। तो आपने क्या किया, जनरेट ऑल द सक्सेसर्स ऑफ द नोड, नोड कौन सी है, ए, इस टाइम पे नोड कौन है, ए, एंड पुट द न्यूली जनरेटेड नोड इनटू द ओपन। तो क्यू में क्या कर दो, बी सी डी डाल दो, लेकिन बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू देयर एफ वैल्यू, मतलब एच एन वैल्यू के हिसाब से। तो देखो एच एन वैल्यू के हिसाब से सबसे पहले अगर मेरा क्यू में ए था, मैंने ए को बाहर निकाल लिया, अब मेरे पास क्यू में कौन जाएगा, सबसे पहले जाएगा सी, क्यों, सी की कॉस्ट सबसे कम है, फिर जाएगा बी और फिर जाएगा डी। सिंपल, बहुत ही सिंपल वे से काम करना है। अब आपको क्या करना है, रिमूव द अगेन फर्स्ट, ए तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो अब इनमें से फर्स्ट कौन है, सी फर्स्ट है, तो सी निकाल दो और फिर वही सेम हमने लूप में ये काम करना है। तो देखो सी आपको, ये दोनों मेरे मेमोरी में ऑलरेडी पड़े हैं, डी और डी मेरे मेमोरी में पड़े हैं, लेकिन अब हमने एक्सप्लोर किसको करना है, सी को बेस्ड ऑन देयर ह्यूरिस्टिक वैल्यू। अब देखो सी जा रहा है ई पे और सी जा रहा है एफ पे, हालांकि सी वापस ए पे भी जा रहा है, अगर आप बनाना चाहते हो आप बना लो, वैसे कोई उसका बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी आप सी कितने कितनों के साथ कनेक्टेड है, सबके साथ हमने लिख लिया। अब देखो सी से ई जा रहे हो और ई आपको लेके जा रहा है गोल स्टेट पे विद 19 कॉस्ट, एफ आपको लेके जा रहा है विद गोल स्टेट पे 17 कॉस्ट, ए आपको लेके जा रहा है विद गोल स्टेट पे 40 कॉस्ट। तो इन सब में से सबसे मिनिमम कौन सी है, इन सब में से सबसे मिनिमम है आपकी एफ, ठीक है। ए को मैं दोबारा से बोल रहा हूं यहाँ पे, ए को नहीं एक्सप्लोर करना, यस आप नहीं भी करोगे, क्योंकि इसको हम जनरली क्या करते हैं, ए को ना हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो हम इसको जनरली क्या करते हैं, क्लोज्ड लिस्ट में डाल देते हैं। जैसे हमने एक ओपन बनाया ना, ऐसी एक क्लोज्ड है, क्लोज्ड क्यू के अंदर हमने उनको डाल दिया जो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं। तो मेन आप फोकस ई और एफ पे करो, तो ई और एफ में से मिनिमम कौन है, एफ, तो यानी आपका कौन जाएगा, अब एफ जाएगा पहले, फिर जाएगा ई, क्योंकि एफ को पहले एक्सप्लोर करना है, तो एफ को एक्सप्लोर करते हैं। एफ देखो आपको लेके जा रहा है, एफ लेके जा रहा है, हाँ एफ लेके जा रहा है आपको गोल स्टेट पे, तो देखो एफ लेके जा रहा है गोल स्टेट पे, मतलब जी स्टेट पे लेके जा रहा है, और जी से जी पे जाने की कॉस्ट क्या है, 0। ऑब्वियसली आप ऑलरेडी गोल स्टेट पे पहुंचे गए हो, तो गोल स्टेट आपको गोल स्टेट में लेके जाएगी विद द कॉस्ट ऑफ ऑब्वियसली 0। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा पाथ फॉलो कर रहा है, ए से सी, सी से एफ, एफ से जी। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, जब मेरी गोल स्टेट आ गई, इफ ओपन इज एम्प्टी रिटर्न द फेलियर, इफ रिमूव ओपन, यहाँ पे नोड इज अ गोल। अब देखो यहाँ पे मेरी जो डी है वो क्या बन गई, नोड बन गई है, तो रिटर्न द पाथ फ्रॉम इनिशियल टू द नोड। तो मेरा पाथ क्या बन गया, ए से मैं गया डी पे, डी से सॉरी ए से मैं गया सी पे, ए वाला पाथ जो हमने बनाया है यहाँ पे, ए से आप गए थे सी पे, सी से आप गए थे एफ पे, एफ से आप गए थे जी पे। तो देखो ये मेरा पाथ जो है वो फाइनल बन गया। तो ये मेरे को जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू के हिसाब से मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू में मेरे को लेके जा रहा है गोल स्टेट तक। तो इस तरीके से जो है वो जर्नी
बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है वो काम करता है। तो देखो हमने अनइन्फॉर्म्ड में, अब इसको अगर हम कंपेयर करें अनइन्फॉर्म्ड के साथ या विदाउट ह्यूरिस्टिक के साथ, तो उसमें आपको जो हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च यूज करते हैं या डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करते हैं, तो वो कैसे काम करता, वो ए से पहले बी सी डी तीनों को पहले एक्सप्लोर करता, फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाता। इसमें हमने सिर्फ सी को एक्सप्लोर किया, बी और डी को सेव रखा कि अगर इन केस ये आगे जाके फेल होता है तो मैं वापस बी पे जा सकता हूं, लेकिन अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया। और इसके बाद सी पे देखो, सी पे जब पहुंचे तो ये ई पे भी लेके जा रहा है, एफ पे भी, तो मैंने ई को एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन अगर ये विदाउट ह्यूरिस्टिक या अनइन्फॉर्म्ड में यूज करते हैं, तब आपको नेक्स्ट लेवल पे हर एक लेवल के सारे नोड्स को फॉलो करना है, जो जनरली बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर जनरली करते हैं। तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाई उसकी कॉस्ट जो है और इवन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जनरली क्या बनती है, ऑर्डर ऑफ बी की पावर m, या जिसको बोल देते हैं कई बार बी की पावर d, दैट इज b इज अ ब्रांचिंग फैक्टर, कितने चिल्ड्रन है, कितने नोड जनरेट कर रहा है, एंड d इज अ डेप्थ व्हिच इज अ एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है ये जनरली काम करता है ग्रीडी मेथड। तो यहाँ पे काइंड ऑफ ग्रीडी मेथड ही हम यूज कर रहे हैं। हम ग्रीडी है रिलेटेड टू द ह्यूरिस्टिक वैल्यू, कि मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू जितनी कम होगी आई एम ग्रीडी फॉर दैट, मैं उसको अपना लोकल मैक्सिमम लेके चलूंगा, मैं उसको ही एक्सप्लोर करूंगा, बाकियों को एक्सप्लोर नहीं करूंगा। तो ऑब्वियसली मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे अच्छी होती है। लेकिन हमेशा याद रखना कि ह्यूरिस्टिक के साथ जब भी आप बेस्ट फर्स्ट सर्च यूज करते हो, इट ऑलवेज गिव्स द गुड सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे ना दे इसकी कोई गारंटी नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, हाँ गुड सॉल्यूशन जो है वो हमेशा देगा। और नॉर्मली आप कह सकते हो कि बेस्ट केस में या एवरेज केस में कह सकते हो कि इट इज मच बेटर देन द अनइन्फॉर्म्ड मेथड। रीजन उसकी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एक्सपोनेंशियल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कॉम्प्लेक्सिटी आपकी चलेगी, मतलब पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चलेगी। लेकिन वर्स्ट केस में हमेशा याद रखना, वर्स्ट केस में बीएफएसबी जो है वो सेम ऑर्डर ऑफ बी की पावर एन, या जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी चल सकता है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ह्यूरिस्टिक के ऊपर। अगर आपका ह्यूरिस्टिक अच्छा है, अगर आपने ह्यूरिस्टिक प्रॉपर्ली कैलकुलेट की है, देन इट इज गुड। लेकिन अगर ह्यूरिस्टिक आपका बैड है तो वो आपको सेम अनइन्फॉर्म्ड की तरह ही फॉलो करवा सकता है, जो कि एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये इसी तरीके से कि अगर आप एक नई सिटी में घूम रहे हो और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपके पास कोई गूगल मैप कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, ऑब्वियसली ह्यूरिस्टिक का यूज करोगे। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या, आप इंफॉर्मेशन लोगे, किसी से पूछोगे, अगर उस बंदे ने सही बता दिया तब तो गुड है। आप कहीं ना कहीं नॉर्मल सारी सिटी को एक्सप्लोर करने के बजाय आप पूछ के जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे जल्दी। लेकिन अगर बंदे ने गलत बता दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा, दैट इज अ बैड ह्यूरिस्टिक। तो आपको उतना ही टाइम लग जाएगा जितना अनइन्फॉर्म्ड या विदाउट ह्यूरिस्टिक भी लगता है। तो वर्स्ट केस में दोनों सेम है, लेकिन नॉर्मल केस में आप कह सकते हो, एवरेज केस या बेस्ट केस में इट परफॉर्म्स मच बेटर देन द अनइन्फॉर्म्ड ह्यूरिस्टिक मेथड। तो यहाँ पे भी देख लो, अगर आप सिर्फ कॉस्ट की देखो, अगर आप ह्यूरिस्टिक के ऊपर काम कर रहे हो तो आप ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हो, ए से सी, सी से एफ, एफ से जी। लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर आप नॉर्मल कॉस्ट लेके चलते हो ना, सिर्फ वहां तक जाने की कॉस्ट, तो देखो कितनी बन रही है ह्यूरिस्टिक के बिना, 14 प्लस 10 24 प्लस 20 44। लेकिन अगर आप इसके थ्रू जाते हो, ए से सी, सी से ई, ई से एच, एच से जी अगर आप जाते हो तो देखो कितनी कॉस्ट बनेगी, 14 प्लस 8 22 प्लस 9 31 प्लस 10 41 which is less than the this cost। तो अगर इन दोनों को टेक केयर करते हो ना, कि इस कॉस्ट को भी और ह्यूरिस्टिक को भी, तब आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आने के ज्यादा चांसेस है, जो जनरली यूज करता है ए स्टार, जो हमने ऑलरेडी नेक्स्ट वीडियो में आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो बीएफएस से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट जितने भी I hope you understood this best first search technique. Okay, in that it will take the heuristic value. Okay, suppose this one is the, you can find out the solution of this one. You try to solve this problem. Can you solve? Please check this problem with the help of. In this, the S is the source and I is the goal. To reach this one, okay, first we have to find out the
ओके ह्युरिस्टिक व्हॅल्यू ऑफ ईच अँड एव्हरी नोड. ओके प्रत्येक नोडची मला काय करायला लागेल तर ह्युरिस्टिक व्हॅल्यू आय हॅव टू फाइंड आउट अँड देन ओनली देन आय कॅन रीच विथ मिनिमम ह्युरिस्टिक व्हॅल्यू टू दिस गोल. ह्या गोलला आपण मिनिमम ह्युरिस्टिक व्हॅल्यू मध्ये रीच करू शकतो. मीन्स दिस इज अबाउट द आवर बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक. Okay, we have seen okay in heuristic search technique there are three methods. One is the hill climbing, second one is the branch and bound search technique, and last one is the okay which one we have seen best first search technique. Okay, you have any problem then you can ask me. Okay, this will end our unit number 3. If you have any problem you can ask me, otherwise you can write your roll number in chat box and you can leave the meeting, no problem. Anybody having any problem you can ask, otherwise you can leave the meeting, no problem. Anybody having any problem? Yes, anybody having any problem? Deshpande, Samruddhi Deshpande. Anybody having any problem? Please let me know. Vaibhav. किती जण राहिले?